Hey, good evening, everyone. Welcome to the second session of a brand new education initiative, Paytm Money Express. And I'm Neeraj Gogoi, your host for the show. And today we've got two very interesting topic to discuss. One is, of course, equity index fund, and next is flexi cap funds. But before I start, I would like to read out the disclaimers for the event. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. All discussions are purely educational in nature and are in no way an advice or recommendation. Representations are not indicative of future results. For more information, please visit Paytm Money website. So again, very quickly, let me tell you what the event is all about. This event is specifically for Paytm Money clients who have opened their account recently, because now lots of young people, first-time investors, are coming to the market, and to start their investing journey in the right footing is very, very important. Whether you buy stocks, whether you trade, or even you invest in mutual fund, your wealth creation journey need to start in the right footing, and that is the whole initiative is all about. And this is the whole thing is Paytm Money Express is all about. So what we do is we get very experienced fund managers with decades of experience, and they guide us. They guide the new investors as to how to take their investment journey ahead, right? So yes, now this Paytm Money Express is powered by this Paytm Money Express is powered by Paytm Money. Our first guest today is Mr. Abhishek Singhal. He is the head of passive and products, Aditya Birla Sun Life AMC. He is very well known in the industry in the passive fund management segment with more than 22 years of experience. And he's a regular speaker. And I can tell you, he's such an interesting speaker. He can give you so much of insight. So yes, that is what Mr. Abhishek Singhal is all about. Abhishek, can you switch on your camera, please? Hi, good evening, everyone. Thank you, Neeraj, for calling me back on the show. Great to have you, sir, once again. Last time we have got such a huge participation and so much of liking for the things, for the concepts, for the lessons, the wisdoms that you have shared. And I thought definitely it's going to help other investors as well. So today we're going to talk about index fund investing. Of course, it's a passive fund investing. And of course, nowadays it's gaining lots of interest, lots of momentum among the investors. Not because the expense ratio is very small, but again, return, outperformance. There's no question of outperformance or underperformance, right? So you were the master, sir. You were the expert. Tell us about what the index fund is all about. Why in this critical moment, particularly when there is so much of uncertainty, so much of volatility, why do you think index fund is the right product for anybody to build a core portfolio for long-term wealth creation? Sure. So, Neeraj, thank you so much for opening this up for the viewers. Ladies and gentlemen, Indian markets are a very diverse play. हम लोग सुन रहे हैं कि इजराइल में क्राइसिस है, यूएस में क्राइसिस है, उधर रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, एंड येट एवरी वीक वी आर आल्सो सीइंग इंडियन मार्केट्स नए हाईज हिट करते रहते हैं. In this year alone, we've seen the markets cross, and when I say markets, I'm essentially meaning Nifty. Right. It crossed Nifty and Sensex cross benchmarks. They're highest ever at least twice in this year alone. And most likely, अभी मतलब we are keeping fingers crossed. दिवाली तक भी हो सकता है कि आपको एक और हाई मिल जाए. Now, given the sort of run up that we've had, जितनी तेजी से मार्केट ऊपर गया है, कभी कभी एक्साइटमेंट होता है और कभी कभी डर लगता है कि कहाँ लगाना चाहिए कि पैसा गिरे नहीं या गिर तो नहीं जाएगा.
और अगर मैंने एक जगह एक स्टॉक में लगाया, एक फंड में लगाया, और ऐसा कहाँ पे लगाएं कि ये तेजी कंटिन्यू रहे, ये पैसा बनता रहे। तो बिफोर आई गो एनी फर्दर, लेट मी टेल यू, equities is the place to be, and especially Indian equities is the place to be अगर आपको लॉन्ग टर्म में जेन्युइनली पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करना है। जस्ट टू गिव सम नंबर्स एंड पुट इट इन पर्सपेक्टिव, अगर हम देखेंगे तो पिछले 15 साल में ऑन एन एवरेज 14.5%, क्लोज टू 15% का पर एनम रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। एंड 15% अगर आप 15 साल तक अगर कंटिन्यू करते हैं तो प्रैक्टिकली आपका 1 लाख रुपया 7,70,000 रुपया बन जाता है, यानी कि 7.7 टाइम्स इन 15 years। व्हाट इट एसेंशियली मीन्स इज कि आपका पैसा 7x बनने के लिए लगभग हर 3-4 या हर 3 साल के अंदर में, 4 साल के अंदर में लगभग डबल हो रहा है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो अगर हमको इतना जबरदस्त पोटेंशियल वाली जगह पे इन्वेस्ट करना है, ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। थोड़ा रिस्क तो क्या बोलते हैं, पैसा बनाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क है तो इश्क है, it was a saying in one of the TV series, but the fact of the matter is that if you are somebody who is new to market, या आप वो हैं जो थोड़ा बैलेंस सॉर्ट ऑफ ग्रोथ चाहते हैं लेकिन एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं, तो इंडियन इक्विटीज के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान तरीका है, पैसिव फंड्स। ये पैसिव फंड्स होते क्या हैं? पैसिव फंड्स बेसिकली वो फंड्स हैं जो कि मार्केट को मिरर करते हैं। इनमें से मार्केट से कुछ नया नहीं करना है, जो मार्केट में है स्टॉक्स, वही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, हु बहु मार्केट का रेप्लिका। तो इफ वी कैन से दैट निफ्टी इज अ मल्टी बैगर इटसेल्फ, 15 साल के अंदर में 7 गुना 7x आपका कहाँ पे पैसा इतनी स्पीड से डबल ट्रिपल यहाँ पे सेप्ट्यूपल हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो 10 साल में भी 14% का पर एनम रिटर्न दिया है निफ्टी ने। तो अगर कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है ओवर अ मार्केट साइकिल, इट्स अ वेरी सेफ, रिलेटिवली अ सेफर प्लेस टू बी, क्योंकि सिर्फ ये पैसा नहीं बना रहा है, आपको डाइवर्सिफिकेशन भी दे रहा है। होता क्या है कि हम एज न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर में तेजी देखते हैं, कुछ एक बड़े इन्वेस्टर्स का सक्सेस देखते हैं, एंड देन वी गेट सक्ड इन कि आज स्टॉक तेजी में है, खरीद लिया, कल रैली खत्म हो गया है, एंड देन फिर सोच रहे हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं बन रहा, पूरी दुनिया का तो बन रहा है। तो इंडिया में लगभग 2000 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, जिसमें से 700-800 कंपनीज रीजनेबली फ्रीक्वेंटली ट्रेड होती हैं, और 400 से 500 कंपनीज का बहुत अच्छा डेटा भी अवेलेबल है। इसमें से टॉप की 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं, विच आर प्रीटी सेफ टू इन्वेस्ट। इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, ये अलग अलग सेक्टर से आती हैं, इनके बिजनेस साइकिल बहुत स्ट्रांग है, इनके मैनेजमेंट्स पुराने हैं, नामी गिरामी लोग उनके अंदर में है, प्रोमोटर्स अच्छे बिजनेस ग्रुप्स हैं, एंड ये सारे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं। हार्डली 2 या 3 कंपनीज होंगी जो शायद प्रॉफिट नहीं प्रिंट कर रही होंगी, लेकिन बाकी सब वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाते रहे हैं काफी सालों से। तो ऐसे एरिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है एक सिंगल जरिए से, तो आप एक इंडेक्स फंड या एक ईटीएफ खरीद सकते हैं। निफ्टी 50 के अंदर में 50 स्टॉक होते हैं, नेक्स्ट 50 के अंदर में और 50 स्टॉक होते हैं, पुट टुगेदर दे मेक लार्ज कैप। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड वो सरल तरीका है इन्वेस्ट करने का कि जहां पे आपको सोचना नहीं पड़ता, और क्योंकि आपको सोचने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे हम एक्सपेंस भी लो रखते हैं, यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी नहीं रख रहे हैं, फंड मैनेजर या एनालिस्ट। तो एक्सपेंस लो होने से आपको क्या फायदा है? एक्सपेंस लो होने से आपको फायदा सिंपल सा है, जितना कम एक्सपेंस उतनी ज्यादा आपकी कमाई। हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया था कि 1% का भी अगर एक्सपेंस रेशो होता है तो उससे आपकी रिटर्न पे कितना फर्क पड़ता है। यही 15 साल की अगर हम इन्वेस्टमेंट पे कंप्यूट करेंगे, और 1% अगर हमने आपकी रिटर्न में से डिडक्ट किया होता था, डू यू नो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 7,70,000 बनने की बजाय केवल 7,50,000 बनती है। ये जो बाकी का डिफरेंस है, ये ओवर द पीरियड एक्सपेंस रेशियो में डिडक्ट हो जाता है। ऐसे ही जो एक्टिव फंड है उसमें बजाय ज्यादा एक्सपेंस देने के, इंडेक्स फंड के अंदर में वी टेक एक्सपेंस ऑफ एज
low as 10-15 basis points. It is as much as the total trade cost that you will be paying. तो बहुत सरल, बहुत सिंपल, बहुत सस्ता जरिया है इन्वेस्ट करने का. इसके अंदर में आपको ट्रांसपेरेंसी 100% मिलती है, क्योंकि पोर्टफोलियो वही है जो अंडरलाइंग इंडेक्स का है. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सा आज तेजी में है, कौन सा मंदी में है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है. स्ट्रेट अवे सिर्फ फंड के पेज पे क्लिक करने का, जहां पे पोर्टफोलियो रनिंग आपको मिलेगा, या एनएससी के या बीएससी के पेज पे क्लिक करने का, जहां पे आपको इंडेक्स के अंदर में सेकंड बाय सेकंड चेंज भी आपको पता लगेगा. एंड इसके अलावा और क्या खास बात है इसके अंदर में, इसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं है. इसके अंदर में आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि तेजी के मार्केट के अंदर में कहीं आपका फंड कम तो नहीं चल रहा क्योंकि फंड मैनेजर कंजर्वेटिव है, या मंदी एक्सपेक्टेड है, बाजार कुछ जरूरत से ज्यादा गर्म है. तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा फंड मैनेजर थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है, बाजार गिरा तो मैं बाजार से ज्यादा गिरा. जो मार्केट का रिटर्न है वही आपको मिलेगा. इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी लेमैन approach to markets. It is a time tested approach to markets. Do you know that the world over, more than 50% assets today, new assets या new fund flow is in passive funds. इंडिया में भी ये ट्रेंड कैचअप कर रहा है. 18% ऑफ टोटल म्यूचुअल फंड एसेट्स आज की डेट में इंडेक्स और ईटीएफ्स में है. क्योंकि हम सिर्फ इंडेक्स फंड पे फोकस कर रहे हैं, तो मैं आपको इंडेक्स फंड के बारे में बता दूं. इसके अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता आपको कोई और अकाउंट्स नहीं ओपन करने की जरूरत है. पेटीएम के थ्रू, आप पेटीएम मनी के थ्रू भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, विद अ फ्यू सिंपल क्लिक्स, क्योंकि आपका केवाईसी ऑलरेडी हुआ है. आपको सिर्फ जाके म्यूचुअल फंड परचेज और एक फंड का नाम क्लिक करना है. यू कुड डू इट एज आदित्य बिरला सन लाइफ, और किसी भी फंड के अंदर में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और परचेज. इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं. जो इन्वेस्टर्स मासिक बेसिस के ऊपर में या मंथली बेसिस के ऊपर में अपना सेव करना चाहते हैं पैसा, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों की शादी की प्लानिंग के लिए, एजुकेशन की प्लानिंग के लिए, इट्स अ ब्रिलियंट रूट. आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके के मार्केट या ऑल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. बाजार में कम से कम 150 से 200 इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको इतने सारे लेने की जरूरत ही नहीं है. आप मुश्किल से 2 फंड्स लीजिए और आप जो बल्क पार्ट ऑफ मार्केट है जहां से रिटर्न्स जनरेट होता है वो आपका कवर हो जाएगा. तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स ट्रांसपेरेंट, एंड अबव ऑल इट्स एक्सट्रीमली लो कॉस्ट, एंड हेंस इट्स इफेक्टिव. यू कैन डू SIPs, यू कैन डू STPs. आप किसी और फंड से इसमें भी ट्रांसफर कर सकते हैं. आप चाहें तो इसमें से जो सेव्ड है वो आप दूसरे फंड्स में, जैसे जैसे आप ग्रेजुएट होते जाएंगे और आप इवॉल्व होते जाएंगे एज एन इन्वेस्टर, दूसरे फंड्स में ट्रांसफर भी कर सकेंगे. तो नेट ये एक विदाउट ह्यूमन एलिमेंट वाला एक फंड है, साइंस पे बेस्ड है, एंड पिछले 20-30-40 साल से ये प्रूवन है. इंडिया में भी इसकी 20 साल से ऊपर की हिस्ट्री है. पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हम तो एक फंड मैनेजर को भी, एक एडवाइजर को भी पैसे दे सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक पर्टिकुलर स्लाइड. कैन वी मे बी लुक एट दी स्लाइड्स? स्लाइड नंबर 3 प्लीज. क्योंकि ओवर द लास्ट दिस इज द वन. सो अगर हम देखें, ये एक स्टडी है जो साल में हर 2 बार रिपीट होती है. हमने पाया है कि जैसे जैसे इंडियन मार्केट डेवलप होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, इंडियन मार्केट में ना पैसा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है फंड मैनेजर्स के लिए. तो या तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, या अगर आप बैलेंस तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं तो इंडेक्स हैज प्रूवन टू बी दैट राइट रूट. ये जो आप सबसे पहली लाइन देख रहे हैं डेटा की, इंडियन इक्विटी लार्ज कैप S&P BSE 100, ये हमको बता रही है वो परसेंटेज ऑफ फंड्स जिन्होंने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है. तो हम देख रहे हैं कि एक साल के बेसिस पे 9 out of every 10 फंड मैनेजर्स हैव अंडर परफॉर्म द इंडेक्स.
अगर हम 3 ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 96%, यानी कि 19 आउट ऑफ एवरी 20 फंड मैनेजर्स हैव अंडर परफॉर्म. सेम इज द केस एट 5 years. एंड 10 ईयर बेसिस पे टू थर्ड्स प्रोबेबिलिटी है, लगभग 67% की प्रोबेबिलिटी है दैट इंडेक्स वुड हैव बीटन एनी एक्टिव मैनेजर. तो क्योंकि अल्फा इतना डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसिव की तेजी है, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एज अ स्टार्टर आप एक एसआईपी रूट या लमसम रूट से इंडेक्स फंड से शुरू करिए. जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप फिर स्टॉक्स भी एक्सप्लोर करिए और बाकी के एक्सोटिक फंड्स भी एक्सपीरियंस करिए. Maybe I'll just pause here and where we could maybe discuss a little more perspectives. Okay. Now, अभिषेक जी आपने बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज कहा है, ह्यूमन एलिमेंट. तो मैं मार्केट में हूँ मोर देन 25 years, उससे भी ज्यादा मार्केट में हूँ. जो नए नए लोग मार्केट में आते हैं ना, एक हमेशा एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अरे यार म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, यार मैं स्टॉक्स में ही करके कमा लूंगा. एंड लेट मी टेल यू, आई सफर्ड फ्रॉम दिस ओवर कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट फॉर 15 years. उसका बाद फाइनली मैंने रियलाइज किया भाई द बेस्ट वे प्रोबेबली, जब कहते हैं ना कि जैसे उम्र बढ़ते हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ते हैं एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होते हैं. तो and I tell you, that is what I have done. I shifted to mutual fund, no doubt stocks में भी है, but so whatever level of investor he is, somebody who is absolutely beginner, उनको कुछ भी understanding नहीं है, then उसका next level जिसको थोड़ा बहुत understanding हो चुके हैं, उसका बाद intermediate level, उसका बाद very expert level जिसको सब कुछ मालूम है, derivatives मालूम है, trading मालूम है, technical analysis मालूम है. मेरे ख्याल से हर सेगमेंट के लिए उसका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है ना, वहां पे जो बेस कंपोनेंट होता है, जो कोर कंपोनेंट होता है, वहां पे तो इंडेक्स फंड होना ही चाहिए. व्हाट डू यू से? I fully agree with you, Neeraj bhai. And the reason why I say so is that the best of the fund managers, do you know what is their strike rate? When I say strike rate, out of every 10 stocks that they buy, कितने stocks successful होते हैं? Guess करिएगा. There is research behind it, but you'd be surprised to know that the strike rate of the best of the fund managers is not more than 70%. 70%. Average professional fund managers जो होते हैं उनका strike rate is somewhere between 50 to 60%. And layman investors या आपके हमारे जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं किसी और इंडस्ट्री के हुए में भी, कोई कंस्ट्रक्शन से है, कोई फार्मास्यूटिकल से है, कोई लेट्स से सर्विस इंडस्ट्री से है, we've been found to have a strike rate of less than 30%. ऐसे बैकग्राउंड में you can only bank on luck. But the one thing which is proven, which is not luck but which is science, is index. इंडेक्स ऐसा क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि इंडेक्स के अंदर में आपके मार्केट के सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं. Just to take the case of Nifty 50 index fund, you have 13 sectors there. You have 13 sectors including banking, financial services, IT, consumer, engineering, pharma, healthcare, media, cement, steel, and a few more. So because of the fact कि आप सारे के सारे sectors यहाँ पे लिए हुए हैं, it's a very true replication of the Indian economy itself. Indian economy हमारे को मालूम है कि क्लियरली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 7% के हिसाब से जीडीपी ग्रो कर रहा है, और हमारा पोजीशन वर्ल्ड में हर 4 से 5 साल में अब इंप्रूव होता जा रहा है. वी आर ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड. एज एन इकोनॉमी वी आर ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज वेल. मोदी जी का मानना है कि अगली टर्म तक नंबर 3 भी हो जाएंगे हम लोग. सो द फैक्ट इज दैट अगर हमको सेफली इन्वेस्ट करना है, वी डोंट वांट एक्सीडेंट्स टू हैपन. Diversification is extremely important. Diversification across companies as well as diversification across sectors.
एंड इंडेक्स इज अलाउइंग यू टू डू दैट एज वेल। इंडेक्स क्यों काम करता है? क्योंकि कुछ कंपनीज जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, ना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में, लेकिन जेन्युइनली अच्छे प्रॉफिट्स भी दे रही होती हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब लोग मिलके ना अलोंग विद एचएनआईज एंड रिटेल इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को खरीदते हैं, क्योंकि उन कंपनीज के पीछे डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, लिमिटेड होती है, तो स्टॉक चलता है, उसका स्टॉक तेजी तेजी में आता है। सप्लाई डिमांड का मिसमैच की वजह से या तो स्टॉक्स का मार्केट कैप ऊपर जाता है या मार्केट कैप नीचे आता है। जिन कंपनीज का मार्केट कैप ऊपर जा रहा है, यानी कि वो कंपनीज तेजी में है, इंडेक्स इन कंपनीज को कैप्चर कर लेती है, और जो कंपनी स्लो डाउन हो रही है उनको हर रीबैलेंसिंग में निकाल देती है। तो इट्स नॉट अ वन टाइम पोर्टफोलियो, ये एक ऐसा फंड है जो ऑटोमेटिकली हर 6 महीने में आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहा है। It is not entirely passive. It's तो इसके अंदर में जो एक्टिविज्म है वो अंदर छुपा हुआ है। हम पैसिव हैं लेकिन इंडेक्स एक्टिव है, इंडेक्स एक्टिव है। सो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यू हैव शेयर कि यस इट्स ए पैसिव इन्वेस्टिंग। हम लोग को कुछ करना नहीं है, इंडेक्स खुद ब खुद एक्टिवली खुद को मैनेज करके जो सबसे बढ़िया के बढ़िया कंपनीज इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, जिससे हमें ग्रोथ मिले। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। अभी देखिए मेरा, हाउ कैन आई लिंक माय गोल्स टू माय different indices? I have got different indices, small cap indices, Nifty 50, Nifty Next 50, you know, even Nifty 500. Similarly, हम लोग का गोल्स अलग अलग होता है, रिटायरमेंट गोल्स होता है, यू नो, बच्चों का एजुकेशन का गोल्स होता है, कि कौन सा फंड से कौन सा गोल लिंक करें, ऐसा कुछ कह सकते हो आप? कैन यू गिव अस सम आइडिया? बिल्कुल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीरज। एंड दो तरीके हैं देखने के। पहला तरीका है जो कि एक सिंपल रिस्क वाला तरीका है कि जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, आपका रिटर्न पोटेंशियल भी उस हिसाब से होना चाहिए, आप उतना ज्यादा रिस्क आपको ले पाना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा रिस्क लेना है, और अगर आप ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब मोर रिस्क। दैट्स द थ्योरी। तो उसके हिसाब से जितना कम आपको समय के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको लार्ज कैप में होना चाहिए। जितना दूर के समय के लिए इन्वेस्ट करना है, उतना आप स्मॉल कैप का रिस्क ले सकते हैं। लार्ज कैप कंपनीज टिपिकली बहुत ज्यादा अच्छे से रिसर्च होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली वेल ओन्ड, दे आर रिलेटिवली सेफेस्ट अमंगस्ट ऑल टू इन्वेस्ट। तो इसके अंदर में एनी न्यू कमर कैन इन्वेस्ट, एनीबडी हु हैज लेट्स से 1 to 3 years of horizon also, it's safe to invest, relatively safer to invest, though it's preferable कि आप उसमें भी आप SIP ही करिए। लेकिन जैसे जैसे आपका होराइजन बढ़ता जाता है कि लेट्स से मेरे को 3 साल से ज्यादा, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो अपने को निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसा इंडेक्स, मिड कैप जैसा इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 7 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देन ओनली मे बी यू शुड इन्वेस्ट फॉर स्मॉल कैप्स। इनका थोड़ा सा आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो अपने प्रोफाइल में थोड़ा सा लार्ज कैप घटा लीजिए, मिड कैप बढ़ा दीजिए। अगर आप और ज्यादा एग्रेसिव हैं तो आप स्मॉल कैप बढ़ा लीजिए, स्मॉल कैप भी इंक्लूड कर लीजिए। तो यू कैन डू अ मिक्स ऑन मैच बेस्ड ऑन दैट। अगर आप गोल से मैचिंग करना चाहते हैं तो टिपिकली एक इंडेक्स की बजाय आई वुड रिकमेंड कि आप इक्विटी और डेट दोनों को मिक्स करिए। डेट आपको सेफ्टी देता है, लिक्विडिटी देता है, इनकम भी जनरेट करता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक गोल बेस्ड अप्रोच रख सकते हैं अगर आप डेट और इक्विटी दोनों को मिक्स करें तो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए पोर्टफोलियो में। एक डेट का इंडेक्स फंड रखिए और एक निफ्टी 50 रखिए, आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड। एक सिंपल सा रूल है, जितना भी आपने, लेट्स से अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मे बी यू शुड हैव मोर ऑफ इक्विटी बिकॉज इट्स मच सेफर। 70% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, 30% डेट में इन्वेस्ट करिए। जैसे जैसे आप हर एक साल गोल की तरफ बढ़ते हैं, आप 10-10% अपना 10-10% आप अपना इक्विटी घटाते चले जाइए। इससे होगा क्या
कि हर साल जो प्रॉफिट्स हैं आप वो भी बुक करते चले जाएंगे। डेट के अंदर में आपका पैसा ट्रांसफर होता जाएगा, डेट आपको इनकम भी जनरेट करता जाएगा। अगर आपका पैसा जल्दी जनरेट हो गया तो आप अपना गोल जल्दी भी पा सकते हैं। Wonderful. I think we got a very few interesting questions from our viewers as well. पहला question Mr. Varun Sridhar से लेना चाहूंगा. So question is, what is passive fund allocation should someone have for 1 lakh monthly SIP? Or the same thing, Brilliant maybe question. किसी का 1000 भी हो सकता है, किसी का 50,000 भी हो सकता है. Take an ideal example. I would say if you are looking at doing a 1 lakh rupee SIP every month, of course जितना ज्यादा पैसा आप उतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लेकिन I would recommend कि बहुत ज्यादा फंड्स में मत डाइवर्सिफाई करिए. It will only destroy that alpha. आपका कोशिश ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट ऑफ मार्केट आप कवर कर पाए. तो 1 lakh of course gives you a lot of leeway to cover the entire market. Maybe put about 35% in large cap, 35% large cap से मेरा मतलब है Nifty 50, 35% in Nifty next 50, and the balance money just split it equally in mid cap and small cap. Okay, there's a question from Rohan. What should be the balance between small cap, mid cap, and large cap in a mutual fund? ये हाँ maybe बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यही सवाल आंसर करने का कोशिश कर रहा है. ऐसा एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एंड इसीलिए शायद बहुत सारी कैटेगरीज आज म्यूचुअल फंड में एग्जिस्ट करती हैं. तो आप फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी देखेंगे तो वहां पे कोई फॉर्मूला ही नहीं है. मल्टी कैप एज अ कैटेगरी देखेंगे तो 50% लार्ज कैप, 25 मिड कैप एंड स्मॉल कैप है. आप फोकस जैसा कैटेगरी देखेंगे तो वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है. And then you have 100% large, 100% mid, 100% small cap categories. I would say that depending on the risk profile, आपका जो large, mid और small का जो weightage है, large में आपका minimum 35 to 40% हमेशा होना चाहिए. It could range up to 70% if you are a more conservative investor. And if you are a conservative investor, आपको small cap में तो कभी invest नहीं करना चाहिए. You could in fact be 100% in large cap also. So depending on how aggressive an investor you are, उतना कम आप large cap करिए. अगर आप एक conservative investor हैं, उतना ज़्यादा large cap करिए. Okay, great. I think we had a wonderful discussion. I think whatever lots of clarity we have got today when it comes to index fund investing. And as always, thank you so much, Abhishek. Thanks for sharing your insight. Looking forward to see you again. And with that, thank you so much. Thank you so much. My pleasure, Neeraj, as always, to be here. And good luck to all investors, all people who are logged in. Happy investing. Thank you. So guys, that was Mr. Abhishek Singhal from Aditya Birla AMC, and we're discussing about index fund investing. In fact, he's an expert in index fund, passive investing, and absolutely whatever we have shared, it could really help us a lot in improving our investment, right? So with that, I would like to invite our next speaker today. He's going to speak on FlexiCap, Mr. Shreyash Devalkar from Axis AMC. Now, he joined Axis AMC in 2016 and took over the responsibility of managing important funds like Blue Chip, Mid-Cap Fund, followed by Multi-Cap Fund in 2017. Prior to his association, he was with BNP Paribas AMC as a fund manager for more than 5 years. So, Shreyash, welcome to the show. If you can switch on your camera, please. Hi. Yeah, hi, Shreyash. Shreyash, first of all, of course, our topic today is a FlexiCap fund. We invest in different market capitalizations. But again, you've been a fund manager. First question that I'd like to ask you: Sure. How do you see, how tricky do you think in the current situation managing a fund is? There's so much of geopolitical change, events happening, election coming, so much of tension is happening. So how do you think the market look like in coming short term and medium term? Sure.
टू बिगिन विथ मोर जेनरिक आंसर इसके ऊपर का Yes. कि हमेशा एट एनी पॉइंट इन टाइम हाँ. व्हेन वी स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग इन्वेस्टमेंट there are some or other concerns at various point in time. आप एक साल महीने 3 महीने पहले कुछ ना कुछ हम्म, कंसर्न तो रहते ही है और बिल्कुल. डिस्पाइट दैट ओवर 3 year 5 year 10 year investors end up making money. सो द पॉइंट इज कि वो कंसर्न आज हम कुछ अलग डिस्कस करेंगे, एक साल के बाद और कुछ डिस्कस करेंगे, तो कंसर्न्स एक जगह है और अपने कंपनीज जहां आप इन्वेस्ट करते हैं वो अपनी जगह है। तो इसीलिए कभी भी इन्वेस्ट करते समय एक है कि मार्केट रिस्क, तो हम ऐसे कंसर्न डिस्कस करके भी कीप ऑन डिस्कसिंग मार्केट में रिस्क ये है, मार्केट में रिस्क वो है। और दूसरा होता है कि कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो बट आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। वो कंपनी चाहे एफएमसीजी हो, वो ऑयल एंड गैस की हम्म, हो या फिर टेलीकॉम की हो, और वो कंपनी अक्रॉस ये सारे अप्स एंड डाउन, जियो पॉलिटिकल रिस्क, ये सब रिस्क के अंदर वो कंपनी कैसे बिहेव करती है, वो कंपनी के अर्निंग्स कैसे बिहेव करते हैं, वो आपके रिटर्न्स के लिए सबसे ज्यादा मायने करता है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं शुरुआत इससे की। अभी कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि अभी जो जियो पॉलिटिकल रिस्क दिख रहे हैं तो उसमें दैट इज द टॉप ऑफ प्रोबेबली टाउन इन दैट सेंस। तो एज फार एज जियो पॉलिटिकल रिस्क इज कंसर्न, क्या है कि ये अभी लास्ट 1.5 साल से 2 साल से ऑलमोस्ट ज्यादा प्रोनाउंस हो गई। एक्चुअली ये कोविड के बाद भी ज्यादा प्रोनाउंस हो गई थी, जहाँ पे आप हम्म, चाइना+1 की आप बात कर रहे थे। अभी वो भी क्यों है, क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल, इट्स अबाउट राइट कि यूएस चाइना से नहीं खरीद रहा है या फिर उनको कम करना है और वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रोक्योरमेंट कम करना है। अगेन इट इज अ जियो पॉलिटिकल, सो एवरीथिंग इज अबाउट इन दैट सेंस जियो पॉलिटिकल। उसमें कुछ में आपको फायदा होता है, कुछ में आपको नुकसान होता है एज अ कंट्री लेवल, एट ए इंडिविजुअल कंपनी लेवल। तो फर्स्ट टू बिगिन विथ एट द कंट्री लेवल कि इसमें हमें कैसे दिखना चाहिए। तो जैसे चाइना+1, यस डेफिनेटली पॉजिटिव जियो पॉलिटिकल रिस्क ग्लोबली, बट उसका आपको फायदा होता हो सकता है। पर पर अगर प्राइसिंग इंटरेस्ट रेट ग्लोबल स्लो डाउन, तो आपके कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है। कमिंग स्पेसिफिक टू जियो पॉलिटिकल, अभी ये जो आपने टॉपिक छेड़ा था, उसमें जियो पॉलिटिकल में दो चीज हो जाती है कि देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन हम्म, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। क्योंकि जनरली इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, इसके बेसिक टेनेट्स क्या रहते हैं कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुड्स अक्रॉस जियोग्राफीज। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क में ये दो चीजें सबसे बड़ी आ जाती है कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल और गुड्स नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो चाइना+1 इज अबाउट दैट राइट, कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होंगे। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट उसके रिपरकशन आपके इन्वेस्टमेंट में कैसे आते हैं, जैसे आप ले लीजिए अभी क्रूड ऑयल प्राइजेस। अब क्रूड ऑयल प्राइजेस 90 या उसके ऊपर हो गए। आप डिमांड सप्लाई टिपिकल इकोनॉमिक्स से करोगे तो कम होने चाहिए, बट जियो पॉलिटिक्स की वजह से ज़्यादा है। अब उसका इम्पैक्ट एज अ कंट्री इंडिया के ऊपर ऑब्वियसली आ ही जाता है, क्योंकि हम नेट इम्पोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल है। तो वो कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली इट एड्स टू योर इन्फ्लेशन। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क तो वन फ्री मूवमेंट ऑफ गुड नहीं होने के कारण एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करती है, जिसका सॉल्यूशन आपके मॉनेटरी पॉलिसी में है नहीं, जिसका सॉल्यूशन इंटरेस्ट रेट हाइक में है नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं है, बट उसका क्विक सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से आ गया। आप अगर आप चाइना+1 जब बात करेंगे तो चाइना इज प्रोबेबली द चीपेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। गुड्स. अगर आप महंगी खरीदे कंट्री से खरीदोगे तो इन्फ्लेशन उसमें इनबिल्ट हो गया आपके। तो वैसे ही ये हो गया फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स का इम्पैक्ट। दूसरा होता है कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल का। जैसे सम कंट्रीज, जैसे अगेन चाइना का ही ले लीजिए, तो इन्वेस्टिंग इन वेस्टर्न और स्पेशली इन द यूएस ट्रेजरी, those things are not happening the way they used to happen 10 year ago. Again, free movement of capital, geopolitical oriented. So net because of geopolitical risk, generally inflationary pressure inherently inbuilt होता जाता है। उसके सॉल्यूशंस आपके
मॉनेटरी पॉलिसी में इमीडिएट नहीं होते, तो उसमें उसमें भी उसका इम्पैक्ट आएगा, पर वो इमीडिएटली दिख नहीं पाता, क्योंकि फिर देन यू नीड टू सी द स्लो डाउन, गो थ्रू द पेन एंड देन इट कम्स। सो इसीलिए ये सब रिस्क है, तो वो है उसमें आपको एज ए इन्वेस्टर in some companies you will see opportunities, in some companies you will see they will get hurt. So that's where as the investor हमें ये देखना पड़ता है कि आप ऐसा नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो पूरा बेनिफिशियरी में आप बैठ सकते हो, बट यू हैव टू मैनेज द रिस्क अकॉर्डिंगली। Correct. Again, there are so many questions, in fact, for you to ask, in fact, but I'll take the questions after some time. I think you are in a very interesting space because when you look at the small cap and the mid caps, they're making new highs, Right. although our market thoda correct ho gaya hai, whereas the large caps are not moving that much. So if you can give an insight about why someone, a new investor, of course, in the previous session, we have been talking about index fund, passive investing. Right. Now, while building a portfolio, दोनों component बहुत जरूरी है, active and passive both. So हम लोग ने तो passive part discuss कर लिया है. अभी let's talk about the active part. So can you show us some kind of insights through your presentations so that we get a fair understanding of the flexi cap funds investing? Yes, definitely. तो presentation आप Yeah. share करें। Yeah. Thank you very much. Yes. Yeah, you can scroll down. Yes, can you see, Shreyash? Sorry, are you able to see? Because on my screen I am not able to see. Yeah. Oh, you're not being able to see? I'm seeing it. You are I seeing can it. see. So I can start. So probably, shall I start? Means, I think Yeah, everyone is able to absolutely. see. We can start. Okay, fine. We can Okay, start. okay, fair enough. So I'm not able to see. So I'll tell you to change the slide whenever I'm done with the slide. So to begin with, I'm on the second slide in this. तो पहला आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में जानने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या है। उसमें एक्चुअली सबसे अच्छा डेवलपमेंट रेगुलेटर ने ऑलमोस्ट 3 years अगो किया था कि कैटेगरी की डेफिनेशन एकदम स्टैंडर्डाइज कर दी, और उसका नाम और उसका कैटेगरी का डेफिनेशन में नाउ देयर इज अ क्लैरिटी फॉर इन्वेस्टर. That is a really good development which has happened. So, and now from which to begin with that as a development, and then you go to the flexi cap, and that's where the name itself, उसका नाम ही आपको वो क्या चीज है वो बता देता है कि it is a flexible, and cap stands for market capitalization. So flexible market capitalization is what this fund category is all about. So flexi cap fund में क्या होता है कि it offers flexibility to the fund manager to invest in large, mid, or small cap, and giving them access to entire market spectrum and opportunities to focus on fast growing sectors as well. अभी इसमें थोड़ा सा इलाबोरेट करें तो ऐसा है कि जनरली अगेन इसमें भी रेगुलेटर ने और एक अच्छी डेवलपमेंट की थी कि डेफिनेशन ऑफ लार्ज, मिड, स्मॉल ये भी तय कर दिया था कि लार्ज 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप्स आर लार्ज कैप्स, नेक्स्ट 150 कंपनीज बाय मार्केट कैप आर मिड कैप्स, और 250th के बाद तो लार्ज टॉप 100 हो गई बाय मार्केट कैप, उसके बाद नेक्स्ट 150 तो 250 हो गई, और 250 ऑनवर्ड्स जो कंपनी रहती है बाय मार्केट कैप दे आर स्मॉल कैप्स. तो इसमें भी एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है, और ये हर 6 महीने में डिपेंडिंग ऑन चेंज इन द मार्केट कैप, क्योंकि मार्केट में कोई कंपनी ज़्यादा चलती है तो मिड कैप लार्ज कैप हो सकती है, या फिर कोई गिरेगी तो लार्ज कैप स्मॉल मिड कैप हो सकती है ड्यूरिंग द 6 month. तो बेस्ड ऑन 6 monthly एवरेज ये कंपनीज के डेफिनेशन चेंज होते रहते हैं, बट देयर इज अ क्लियर कट लार्ज, मिड, स्मॉल कैप सेगमेंट टू इन्वेस्ट इनटू व्हिच इज अवेलेबल टू एवरीवन. तो मार्केट में जैसे अलग कैटेगरी है कि लार्ज कैप कैटेगरी है जिसमें आप 80% के ऊपर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो आप जब लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास मिड और स्मॉल अप टू 20% ही हो सकता है. अगर आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 65% मिड कैप हो सकते हैं
और कम से कम, और उसके ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 65% कम से कम। स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास अगेन 65% स्मॉल कैप ही होते हैं कम से कम, बिल्कुल। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन एक फ्रीज करने के कारण इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी है। तो अभी फ्लेक्सी कैप में इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हैविंग सेड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज की, जैसे मार्केट में मल्टी कैप भी है जिसमें देयर इज अ डिफाइंड मिड, लार्ज और स्मॉल कितने होने चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी है, और या फिर जिसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बोलते हैं, वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में डिफाइंड है कि कम से कम 50% लार्ज कैप ही होने चाहिए, कुछ मिड कैप भी होने चाहिए। तो ये डिफाइंड कैटेगरीज है। उसके अलावा जब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इन दैट कॉन्टेक्स्ट को हम कंपेयर करते हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर हैज अ full freedom of investing into any market cap to whatever extent we wish to. So with this flexibility, उसकी वजह से क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर फंड मैनेजर के पास है तो ही नीड नॉट गेट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन मार्केट कैप्स। अब इसके अगर हम फायदे देखें एज अ फंड मैनेजर टू मैनेज दिस, और एंड फॉर एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो टू मैनेज दिस, अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट में उसे लगता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है, या फिर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में वैल्यूएशन कम है और उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो ही इज फ्री टू शिफ्ट फ्रॉम वन सेगमेंट टू अदर और बाय एनी कंपनीज मेरा इररेस्पेक्टिव। माइंड में एक क्वेश्चन आया है। सॉरी, हाँ बोलिए। मेरा मन में एक क्वेश्चन आया है हाँ, कि देखिए द फंड मैनेजर, उनका पास फ्रीडम है कि एनी टाइप ऑफ स्टॉक्स को इंक्लूड करने का, है ना? राइट। सो डू यू मीन दैट एट टाइम्स ए फ्लेक्सी कैप फंड कैन बिहेव लाइक ए स्मॉल कैप, एट टाइम्स इट कैन बिहेव लाइक ए मिड कैप, और एट टाइम्स इट कैन बिहेव इन ए लार्ज कैप? कैन आई assume like that? Yes, so theoretically you are right. Okay. Theoretically you are right that one can, if we want to. But वैसा अगर आप अगेन इफ यू गो बाय द कैटेगरी एवरेज, कैटेगरी ने कैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं ओवर लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, तो ऐसे फुल फ्लेजेड जनरली आप नहीं पाओगे, पर स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में हाल ही में लास्ट 1-2 साल में मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ा है डेफिनेटली। बट जैसे आप बोलते हो कि 100% स्मॉल कैप टेक्निकली थियोरेटिकली कर सकते हो, बट फिर आपको वो इंडिविजुअल फंड का फैक्ट शीट में तो आपको मिलता ही है, उसमें आप क्या जाके आप देख सकते हो कि कितना मिड है, कितना स्मॉल है, कितना लार्ज है। करेक्ट। तो ये करने के फायदे एक होते हैं कि आपको कोई भी स्टॉक लेते समय आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि अभी फंड में वेटेज इसका कितना है तो इसलिए मुझे रखना पड़ेगा या फिर मुझे बेचना पड़ेगा या फिर इसमें इतना ही रखना पड़ेगा। ही इज फ्री टू एक्ट। दूसरा एक इनडायरेक्ट फायदा ये कैटेगरी में और एक होता है कि विद दिस फ्रीडम टू गेट इनटू लार्ज, मिड, स्मॉल, वो एक दूसरा ऑब्जर्वेशन मार्केट में ये है कि अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी देखेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी में अगेन ऐसा डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं होता है, बट रफली you can say it is majorly dominated by consumption sector of economy. While mid and small cap category में आप जिसे B2B sectors बोलते हो वो आप ज़्यादा पाएंगे। तो opportunities of consumption sector are more in large cap, opportunities of B2B sectors are more in mid and small cap. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो ओईएम सेक्टर है जिसमें जो गाड़ी बनाते हैं वो सब लार्ज कैप्स होते हैं मोस्टली, और वो गाड़ी बनाने वाले को जो सप्लायर्स होते हैं जिसे ऑटो एंसिलरी बोलते हैं वो मिड और स्मॉल कैप में है। अगर आप लार्ज कैप, जस्ट टू गिव दिस एज एग्जांपल विद ऑटो एज अ सेक्टर, कि आप जब लार्ज कैप फंड खरीदते हो तो आप ऑटो ओईएम खरीदते हो, जब आप मिड और स्मॉल कैप खरीदते हैं तो आप एक्चुअली उसको सप्लायर करने वाले ऑटो एंसिलरीज खरीदते हो। तो जब आपके पास एक फंड में लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है, तो आपको स्पेक्ट्रम पूरा करने का, कवर करने का अपॉर्चुनिटी है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में सारा सेगमेंट कवर हो सकता है टेक्निकली। अच्छा श्रेयस जी, हाँ, आई थिंक आई विल जस्ट टेक ए क्वेश्चन। यहाँ पे एक बहुत विक्रम प्रभु जी का क्वेश्चन आ रहे हैं। सो विक्रम प्रभु जी, उनका पहला क्वेश्चन है, एक्टिव फंड्स आर टू मच फंड मैनेजर डिपेंडेंट, ओके, एंड इफ ए फंड मैनेजर लीव्स द कंपनी
Do the Hmm. investors wait and watch? How long they need to keep watch on the performance if there is an underperformance? तो अगर आप स्पेशली अगर फंड मैनेजमेंट चेंज की बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हाँ. एएमसीज इंडस्ट्री ऑब्वियसली द फंड मैनेजर इज द वन हु एक्चुअली टेक्स डिसीजन अबाउट इट पर उसमें एक पूरी इन्वेस्टमेंट टीम भी रहती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट डेफिनेटली लार्ज पार्ट इज अबाउट वन पर्सन बट even there is a large part which is also about the team which is there in that AMC, which is a team of analysts. There is a head as well as there is a many AMCs work on a certain philosophy of investing कि हम Hmm. एक particular way से invest करते हैं. तो all these processes of the AMCs by way of people or philosophy, these processes generally uh, tend to play a role during such transitions definitely and that's where in my opinion कि Hmm. fund manager change में there can be some disruption. I don't Hmm. it's very difficult to say कि कितना time but in my opinion ये जो processes है that generally minimizes disruption for a time period. So आजकल completely एक system है, एक process है that takes care of to a great extent. Now Vikram ji is our regular viewer actually. Thank you Vikram ji. You have been posting so many interesting questions. But I think I will take one more questions from you. Why not most of the flexi cap? Why most of the flexi caps in India are tilted towards large cap? Let's say 70% approximately, and Mhm. acts as a pseudo large cap. Right. उसके एक्चुअली एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आप देख सकते हैं या फिर कि आप अगर देखोगे कि अगर लास्ट 10 साल में मीन्स मैं लास्ट Hmm. डिकेड की बात कर रहा हूँ तो लास्ट डिकेड में आपने ये देखा होगा कि लार्ज कैप्स हैव आउट परफॉर्म अगर आप Hmm. जनवरी 20 में जाके अगर देखते कि ऑन अ 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर बेसिस कौन सी कैटेगरी हैज आउट परफॉर्म आउट ऑफ लार्ज मिड स्मॉल तो आप ये पाओगे कि लार्ज कैप कैटेगरी हैज डन इक्वली वेल एंड इन सम टाइम पीरियड इट हैज डन इवन बेटर देन मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी इन लास्ट डिकेड तो Hmm. एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसके पीछे कि इसीलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बिकॉज ऑफ दोज रीजंस कि ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिल दैट पॉइंट अगेन आई एम सेइंग सो ये सिनेरियो जनरली आप देखोगे पोस्ट कोविड मार्केट रिकवरी में पूरा चेंज हो गया तो Hmm. in last decade, as I said, on a 3 year, 5 year, 10 year basis, this category large cap has outperformed mid and small, and that is also one of the reasons. So there can be multiple reasons. So I can just think of one prime reason for the category to begin with having the higher exposure to large cap. But over last 2 years or 3 years since this post-COVID rally started, in my opinion, various funds would have increased their like mid and small cap exposure Correct. from the time they started in probably Jan 2020. So Correct. it's more to do with the change in the market situation rather than anything else. Great. There's a question from Mr. Rohan Iyer. Now it's again, should I start with a lump sum or an SIP? Now this Hmm. question we keep on receiving time to time. And which index should okay. Okay, debt or equity. It's a question, general question as a whole question, but I think it's a very important question that we need to handle. So, yeah. Should I read out the questions again, sir? Sorry, so आपका question था regarding SIP या lump sum? Yeah. And which index should I start with, debt or equity? Debt or equity? Yeah. Okay, so I think probably I'll split the question on this, which is Okay. so Okay. one is Now, on पहले first question, should I start with a lump sum or SIP? हाँ लमसम और एसआईपी तो लमसम और एसआईपी में एक्चुअली एक थोड़ा क्लीशे सा आंसर है मेरा इसमें एंड पार्डन फॉर दिस गेटिंग इनटू मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट बट आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट कि इसमें क्या है कि आप लमसम डालोगे और या फिर एसआईपी करोगे फ्रैंकली ऑब्वियसली everyone including me would
recommend doing a SIP because SIP में आप एवरेज करते हो. अब एवरेजिंग की भी आप अगर मैथमेटिकली देखोगे तो उसमें बहुत तरीके रहते हैं. व्हेन यू डू SIP एक्चुअली यू आर टाइम एवरेजिंग कि हर मंथ कर रहे हो, वो भी लेवल कुछ भी हो मार्केट की. तो टाइम एवरेजिंग इज वन विच यू डू. There can be multiple level of ways of averaging at various market levels. I mean, some people में से मैं मार्केट ऊपर है तो ज़्यादा नहीं डालूंगा, नीचे है तो ज़्यादा डालूंगा. That is also one way of averaging. While SIP is a time averaging. Now ये जो दूसरा वे होता है कि जो when people say lump sum, तो that is actually it's the other extreme of the second way कि अभी ना मुझे लगता है मार्केट गिरा हुआ है, मैं पूरा डालता हूँ. या फिर कुछ लोगों के केस में तो कोई उल्टा भी हो जाता है कि मार्केट चल रहा है तो देन पीपल फील लेफ्ट आउट एंड बोलते हैं कि अभी मैं पूरा डाल देता हूँ. सो टू अवॉइड दिस बिहेवियरल इम्पैक्ट ऑन योर डिसीजन मेकिंग, दैट्स वेयर द SIP प्लेज अ बेटर रोल इन दैट. कि चलो पहला केस है कि आपने मार्केट के बॉटम में डाला तो अच्छी बात है, पर बहुत बार वो मिस आउट फीलिंग की वजह से आपने टॉप पे डाला तो फिर इशू हो जाएगा उसमें, राइट. तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है उसमें. तो इसीलिए मतलब SIP helps you in investing at various market levels and that's where that is always recommended. Since there is no right or, तो आप किसी भी पूछोगे कि अभी लमसम का टाइम है क्या, इसका आंसर आपको राइट टाइम पे राइट आंसर मिलने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, राइट. तो अदरवाइज व्हाई नॉट. इफ समवन सेज कि यस माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग कि ये मार्केट का बॉटम है या टॉप है इज वेरी हाई, बट वो बहुत कम केसेस में होता है. या फिर आपको राइट टाइम में समझ में मैसेज आपको मिलना वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसके ऊपर एक्ट करना भी. तो इसीलिए बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंस्ट्रेंट्स आई वुड रेदर से दैट SIP इज द बेस्ट वे because it averages out at various time period and that's where it and it more importantly it takes care of behavioral aspect ki getting left out feeling or जो other way. इमोशनल एस्पेक्ट को टेक केयर करते हैं. अच्छा श्रेया जी, ये भी कंक्लूड करना गलत होगा क्या अगर लमसम करना है, देन यू शुड बी लिटिल बिट अवेयर अबाउट द मार्केट. लाइक आपको मार्केट में अच्छा खासा समझ में आना जरूरी है, समझ, है ना. और सेकंड थिंग, कैन यू टेक ए मिड वे बिटवीन लमसम एंड SIP. फॉर एग्जांपल मेरा पास 10-15 लाख रुपया आ गया, अभी मैं तो उसको SIP नहीं कर सकता हूँ. आई हैव टू पुट इट इन द मार्केट, है ना. तो कैन आई डू इट समथिंग लाइक दैट कि मैं हर 3-3 महीने में स्टैगर्ड करके 5-6 टुकड़े करके डाल दूं उसको, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन वन शॉट. आई विल मेक इट इनटू 4-5 पीसेस एंड देन पुट इट स्लोली इन द मार्केट. श्योर. तो जिसे आप STP बोलते हैं कि आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करोगे ओवर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, और वो भी एक अच्छा तरीका है. जो क्योंकि आपके पास SIP क्या होता है कि आपका अगर सैलरी है, रेगुलर इनकम है, तो रेगुलर इनकम आता है, आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो. किसी का अगर लमसम इनकम आ रहा है तो ऑब्वियसली व्हाट विल यू डू. ये लमसम इनकम आ रहा है तो लमसम इन्वेस्ट करे कि ओवर स्टैगर्ड करे. तो स्टैगर्ड में फिर हमेशा यही डिस्कशन होता है कि जैसे आप आज की तारीख देख लीजिए, तो यहाँ से आगे आपने जैसे शुरू में हाईलाइट किया था जियो पॉलिटिकल रिस्क है, उसके बाद वो ग्लोबल, उसके बाद लोकली देर इज ए इलेक्शन. सो जनरली देर हिस्टोरिकली आप देखोगे कि इलेक्शन के पहले मार्केट पीक हो सकता है या बाद में हो सकता है, आपको पता नहीं कहाँ कब होगा. तो आप वो भी एक लेके जाते हो. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट इज ऑलवेज बेटर टू पुट इन STP मोड, जहाँ पे आप 6 मंथ या 1 ईयर का करते हो, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इवेंट यू आर फोरसीइंग ओवर व्हाट टाइम पीरियड, एंड दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द वे टू लुक एट इट. Wonderful. So again, to conclude, how would you like to advise an investor with respect to flexi cap fund in terms of percentage of his portfolio, in terms of how the prospect, how do you as a whole would like to advise a investor, an experienced old investor as well as somebody who is new investor? Your final words on, yeah. तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैं हमेशा अगर आप तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, ऑब्वियसली आप एक रिस्क रिवॉर्ड का मैट्रिक्स रहता है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमेशा रिलीज करती है कि कौन से प्रोडक्ट लो रिस्क लो रिटर्न है, कौन से प्रोडक्ट हाई रिस्क है.
तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो रिस्क मीटर में आपको देखेंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी वो रिस्क मीटर में हमेशा लोअर साइड पे दिखती है ऑन रिस्क. तो फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर ऑब्वियसली व्हेन इज टेस्टिंग कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम then obviously the risk recommended is lesser in the context. So पहले first time investor को he can start with the large cap category and then slowly move on to flexi cap and then mid and small. So in that sense it lies somewhere between when it comes to risk. तो इसीलिए एकदम से आप बिगिन करने के लिए लार्ज कैप इज ऑलवेज बेटर ऑन द रिस्क बेसिस, उसके बाद फ्लेक्सी कैप और उसके बाद मिड और स्मॉल कैप. Thank you so much. I think, Shreyash ji, we had a nice discussion, and we'll keep on having this discussion. Every time we'll take up a new topic, and Shreyash ji will be there to guide the investors about how to, take their investment journey in a very productive, fruitful way. Because ये बहुत important होता है. बहुत सारे investors, by the time they gain the actual insight with respect to their investment, बहुत time खो जाते हैं. In fact, many of the people, to come to the right track, it takes decades. पहले तो एक, बहुत सारे साल, उल्टा पुल्टा करते रहता है. So therefore, these sessions are very important, where at least a नया investor जो आते हैं, he can start, he gets to know कि मुझे करना क्या है, what is the right way. So that is why we'll keep doing these sessions every Wednesday for our new welcome sessions. We call it Paytm Money Express. We'll keep doing it, and I would like to thank all the participants, and also I'd like to thank Shreyash Devalkar from Axis Mutual Fund for being a part of this program and giving us so much of guidance and insight. Thank you, Shreyash. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. So that's all for today, guys. See you next time, same time, Wednesday. Do tune in, and we'll bring in new topic, new discussions, new fund managers, and we'll continue our learning journey. Thank you so much. Bye-bye.